And esteemed guests, it's a great pleasure to introduce you to this session's speakers, Jyoti Yadav, Uma Shankar Yadav, and Larissa Sarao for a conversation about touching stories. I'd like to call on stage Jyoti Yadav, who is an award-winning journalist and is currently working as principal correspondent with The Print. For the last 7 years, she has been covering the transformative changes that take place around the issues of gender, politics, policy, and rural India. She became the first person to graduate and postgraduate in a marginalized farmer's family. She is the recipient of many prestigious awards, including International Press Institute Award 2022, Thomas Foundation's Young Journalist Award, runner-up 2022, Ramnath Goenka Award, IMC's Young Journalist Award, Red Ink Award 2021 and 2022, UN Ladli Media Awards, Press Institute of India, and the International Committee of the Red Cross Award. Next, we have Mr. Uma Shankar Yadav, who is the founder director of Ahmedabad International Literature Festival, and without whom we wouldn't be standing here. Lastly, this session's moderator is Larissa Sarao, who is a literature enthusiast. She loves to explore the mysterious realms of fiction. She also enjoys writing her own Gothic stories inspired by her vivid imagination and is currently pursuing Masters in English Literature degree at State Xavier's College. Thank you, and good morning everyone. Jyoti ji, welcome to Ahmedabad. Thank you. Before we start the session, I want to tell a very small story. When I was young, in 80s and 90s, I was watching televisions and I am very fascinated with journalists. और जर्नलिज्म मुझे बहुत पसंद आता है. मैंने केतन भाई को भी कितने बार बताया कि जर्नलिज्म मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है. तो उस टाइम पे दूरदर्शन में एक सीरियल आता था. शायद आप लोग जो 90 के दशक में देखे होंगे, 90-91 में, सुबह सवेरे, आई बिलीव दैट वाज अ नेम, एंड वन लेडी वाज ब्रिंगिंग दैट सीरियल. हर नेम वाज सीरीन, SERENE. So I was so fascinated the way she was conducting, the elegance, the beauty, the calm. उस टाइम पे ही मैंने डिसाइड कर लिया था 80s में, लेट 80s एंड 90s में, कि जब मेरी डॉटर होगी, आई विल पुट कीप द नेम सीरीन. एंड that we did it in 2012 when my daughter came. That Serene name comes from there in 91. जब मैं वो सीरियल देखता था उसी टाइम पे मैंने सोचा, सीरियल नहीं था वो, सुबह का जो प्रोग्राम आता है सुबह सवेरे, तो मैनी ऑफ यू कैन रिमेंबर द फेस. एंड आई एम श्योर आज के बाद, ज्योति जी से मिलने के बाद, आई कैन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी डॉटर्स के बारे में सोचेंगे कि येस 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 आई एम गोइंग टू मेक कीप नेम ऑफ ज्योति यादव. और आप सब लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ. शायद आप लोगों को पता नहीं हो कि मैंने भी जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और अच्छे ग्रेड के साथ किया हुआ है. इसलिए मुझे जर्नलिज्म पसंद भी बहुत है और जर्नलिस्ट भी बहुत पसंद हैं. ज्योति यादव जी उसका एक उदाहरण है कि हम जर्नलिस्ट को बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत सम्मान देते हैं. Larissa, you can start with. So, in today's rapid evolving world, we kind of have this, importance of media, of diversifying stories. And to that sense, Jyoti ma'am, how do you look at, yourself as a 21st century journalist? थैंक यू लारिसा. हमसे पहले जो सेशन था उसमें रील्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की बहुत बात हुई. तो ये 20वीं सदी का जर्नलिज्म नहीं रहा. हम लोग भी इन्फ्लुएंसर्स से compete करते हैं. आप देखेंगे कि आज यूनियन मिनिस्टर हों, चाहे बॉलीवुड के स्टार्स हों, वो इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा इंटरव्यू देते हैं पत्रकारों के बजाय. सो बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है. वी आर नॉट जस्ट कम्पीटिंग विद अदर न्यूज़ चैनल्स बट ऑल्सो विद अ राइजिंग इंडस्ट्री, और वो है इन्फ्लुएंसर्स की. आपने पूछा कि हाउ डू आई, So my role in a newsroom,
न्यूज़ रूम भी कई तरह के हो गए हैं, अखबार नहीं रहे हैं, और आज हमारे सामने यूट्यूब चैनल हैं, टीवी की बजाय यूट्यूब चैनल हैं। आप लोग अपने फ़ोन पर सुबह सुबह सारी खबरें पढ़ लेते हैं, या शाम को ब्रेकिंग होती है तो शाम को पता चल जाती है, अगले दिन अखबार का लोग इंतज़ार नहीं करते। तो सोशल मीडिया, यूट्यूब और वेबसाइट्स के दौर में मेरे जैसे पत्रकारों का काम न्यूज़ रूम में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत है। तो हम जब तक ग्राउंड पर पहुंचते हैं वो खबर इतनी वायरल हो चुकी होती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट लूज़ हो जाता है। आपने मुजफ्फरनगर के एक छोटे बच्चे की पिटाई का वीडियो देखा होगा। वो टीचर ने उनको उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से पीटा, तो उसको लेकर बहुत सारे नैरेटिव चले, हर तरह के नैरेटिव के लोग बैठे हैं सोशल मीडिया पर। फिर जब तक मैं गांव में पहुंची तो चीज़ें बदल चुकी थी, उसकी कहानी थोड़ी सी ट्वीक हो चुकी थी। तो जब तक हमारी खबर आती है तब तक उन नैरेटिव्स को काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम अपने काम को उतने ही अग्रेसिव तरीके से कैसे रखें। तो अब हम सिर्फ कहानियाँ लिख नहीं रहे हैं, स्टोरीज़ को सिर्फ रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको अग्रेसिवली पुश करते हैं ताकि आप सब तक हमारी वो कॉन्टेक्स्ट वाली जो स्टोरी है वो पहुँचे। तो मेरा रोल इस न्यूज़ रूम में आज ये रहा है कि ना सिर्फ स्टोरी रिपोर्ट करूं, टाइम से पहुंचूं, बट ऑल्सो मेक श्योर कि वो हर जगह पहुंचे, वहाँ पहुंचे जहाँ नैरेटिव्स पहुंच चुके हैं। और ये पहुंचते हैं। मेरे पेरेंट्स जो गांव में रहते हैं हरियाणा में, और उन तक बहुत सारी खबरों के डिस्टॉर्टेड वर्जन पहुंच चुके होते हैं, तो उनको भी बताना कि नहीं मैं वहाँ गई थी, मैंने ये देखा था, वायरल वीडियो के अलावा ये सच है, तो बहुत मुश्किल होता है। सो दैट्स इट। मेरा सवाल आपसे एक अलग तरह का है, वो ये कि there are certain organizations, media organizations, there are certain your digital media organization, print media, electronic media, and there is a certain kind of journalism people do. So, they have been understood now that they will be doing this kind of journalism. So, do you think that this kind of journalism, one day you mentioned that I want to maintain my neutrality, I don't want to be seen here or there. So, how do you rate this, or how do you take it in present context where we need to be little more neutral, to be little more pragmatic about writing the stories, instead of making the narratives, as you said. When you start looking at the story from your own point of view, and you want to create a narrative, and you want that people should believe that this is the thing, this is the right thing. So, and there are the people, those who want to create that kind of narratives. So, do you think it is a painful, or you think that people are a part of creating these kind of narratives, and they have certain vested maybe interest behind creating these kind of narratives? So, how do you see yourself there? Because I consider, and you yourself say that you are a neutral, you want to be a neutral journalist. How do you see this? Did you get what I wanted to say? मीडिया के दो खेमे हैं, एक को गोदी मीडिया कहते हैं, और गोदी मीडिया वाले दूसरों को एंटी नेशनल कहते हैं। उन खेमों के बीच में एक जो बीच का रास्ता है, उस पर डटे रहना कि हम थोड़ा सा क्लोज रखना। यस, तो वहाँ डटे रहना, तो फैक्ट्स की बात करना, इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँचाना ही मुझे लगता है कि सीरियस जर्नलिज्म है। और आजकल सीरियस जर्नलिज्म करना ही बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आप जब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके यूज़ और मिसयूज़ दोनों हो सकते हैं। जैसे मैंने मुजफ्फरनगर वाली स्टोरी को कोट किया, तो उसी स्टोरी को दो अलग अलग खेमों ने अलग अलग तरह से यूज़ किया। वो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल में है, लेकिन हमारा स्पेशली द प्रिंट का और मेरा तो एक उद्देश्य या हमारा जो मोटो है वो यही है कि हम किसी खेमे में नहीं है, हम सेंटर में हैं, और यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट रियली हैपेंड। और एक डेमोक्रेसी में इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स का एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाना, उसके लिए सीरियस जर्नलिज्म होना बहुत ज़रूरी है, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है ओपिनियंस, क्योंकि ओपिनियंस भी बहुत पोलराइज करती हैं, और
कई बार आजकल ऐसा देखने में आता है कि न्यूज़ की बजाय ओपिनियंस को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, हम सब उसी पे रिएक्ट करते हैं कि फलाने ने इस एडिटोरियल में ये लिख दिया, उसने किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बोल दिया। सो वो जो सीरियस जर्नलिज्म है, वो जो बीच की धारा है, उस पे रहना, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। इसी से जुड़ा हुआ एक और सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि ये किसी और तरह से नहीं कह रहा हूँ मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके अपने भी खुद के इंटरेस्ट होते हैं या उनके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट होते हैं। जैसे जो स्टोरीज आप कवर करती हैं, हो सकता है कि आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह की स्टोरी कवर करूँ, और इंडिया में या मे भी दुनिया में बहुत सारी तरह की स्टोरीज हैं। तो इस बात को भी लोग तरीके से ले सकते हैं कि आप तो इसी तरह की स्टोरीज करती हैं या करते हैं, और वो लोग इस तरह की स्टोरीज करते हैं। तो यहाँ पे जर्नलिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि नहीं मुझे इसी तरह की करना है, या कोशिश करके नहीं चलो न्यूट्रल भी बने रहना है। हाउ डू यू मैनेज दोज थिंग? बिकॉज सी यू डू सर्टेन से सपोज रूरल काइंड ऑफ स्टोरीज, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई अप्रिशिएट दैट कि वो लोग वहाँ तक नहीं, और लोग नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ आप करती हैं जो स्टोरीज को। तो दूसरे लोग भी ये बोल सकते हैं कि नहीं और भी तरह की स्टोरीज हैं और हमारी स्टोरीज नहीं कवर होती, तो उसको कैसे मैनेज करती हो फिर आप? एक तो पॉपुलर ऐसा कंसेप्शन है कि या तो आप पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ करते हैं तो आप एक तगड़े जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बीट न्यूज़ रूम की हायरार्की में यहाँ पर है, टॉप पर है। फिर जो जेंडर, फीचर, रूरल हैं वो यहाँ पर हैं, मतलब एकदम नीचे हैं। तो विद इन न्यूज़ रूम भी कई तरह के खाने बने हुए हैं, किस खाने में आप फिट होते हैं वो आप देख लीजिए। फिर इंटरव्यूज़ के बाद आता है कि आप विजुअल मीडियम यानी वीडियो के माध्यम से कितना जर्नलिज्म करते हैं। फिर आजकल एक नया आया है मोनोलॉग्स देने का। एक यूट्यूब चैनल पे एक खबर आपने एक्सप्रेस की पढ़ी, आपने हिंदू के किसी रिपोर्टर की बाईलाइन पढ़ी, उसको बना के आपने 20-30 मिनट का समाज किस दिशा में जा रहा है आपने मोनोलॉग दिया। वो भी पत्रकार हैं। तो कई तरह की पत्रकारिता होती है। लेकिन जिस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मैं हूँ, द प्रिंट में मैं काम करती हूँ शेखर गुप्ता के साथ, तो वहाँ पर हम सब तरह का जर्नलिज्म करते हैं। जर्नलिज्म जैसा बहुत सारे, जब मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ तो कोई ज़माना था जब सब कोई फेमस एंकर्स को फॉलो करता था, मुझे ये बनना है। आजकल यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं कि मुझे ये बनना है, और उसके बीच में इन्वेस्टिगेटिव लॉन्ग फॉर्म फीचर्स जो है ना वो गुम हो गए हैं। कि जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मैं बाड़मेर में गई राजस्थान में, ये इसी साल मार्च की बात है, और वहाँ पर छोटे छोटे सुसाइड्स के केस रिपोर्ट होते हैं लोकल अखबारों में। महिलाएं सुसाइड कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं लेकिन उनके अलग कारण है, वो रिपोर्टेड हैं। महिलाएं जो हैं वहाँ जो वेल हैं, टाँके बोलते हैं उनको लोकल भाषा में, टाँकों में कूद के और अपने 4-4 बच्चों को भी साथ में लेकर कूद जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये क्या खबर है, अब दिल्ली से तो बहुत दूर है बाड़मेर, और सिर्फ बाड़मेर में क्यों हो रहा है, ये जैसलमेर में क्यों नहीं हो रहा, जोधपुर में क्यों नहीं हो रहा, वो भी तो रेतीले जो डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मैं वहाँ गई और फिर मैंने वहाँ पर 1 हफ्ता लगाया, मैंने उन फैमिलीज़ को ट्रेस किया, और मैंने वहाँ पर जब अपनी रिसर्च की तो पाया कि वहाँ पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं उस समाज में। वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी आई, थोड़ा नया पैसा आया, कुछ हाईवेज़ बने, कुछ घरों के पास पैसा आ गया, कुछ घरों के पास नहीं आया। और जो ये डिवाइड था उन घरों का नए पैसे वाले घरों से, वो बहुत बड़ा डिवाइड था। तो जिनके पास पैसे थे उनके घर में हो सकता है एक काली SUV खड़ी हो, और ये घर बेचारा अभी बकरियां चरा रहा हो। अब क्या हो रहा था कि इन घरों की औरतों की एस्पिरेशंस उस घर को देखकर बढ़ रही थी, और उनके हस्बैंड्स, उनकी फैमिलीज़ उससे उस तक उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। और ये जो वहाँ पर ड्रॉट है, वहाँ पर माइग्रेशन है, सारे कारणों को मिलाकर ये बड़ी स्टोरी हमारी बनी। तो हम वो स्टोरी कहने बाड़मेर जाएंगे, ना कि अभी जैसे इलेक्शन में मैं नहीं गई कि 4 लोग इकट्ठे किए, मंडली बनाई, पूछिए अब वो अपने नेता को गाली दे रहा है, अब वो किसी अपने नापसंद के नेता को गाली दे रहा है, ये अपने पसंद वाले को जो है तारीफ़ कर रहा है। सो आई चूज़ दैट काइंड ऑफ स्टोरी, एंड आई विल ऑल्सो कोट अनदर स्टोरी when the entire media was after सीमा हैदर। वो नोएडा में हमसे ज़्यादा दूर नहीं थी, हम सब लोग जा सकते थे। I chose to follow भंवरी देवी केस। सो आप सब ने सुना होगा राजस्थान में there was this woman who was trying to stop a child marriage in 1992 and she was gang raped for that, and I followed her story after 30 years, and
मैंने उनकी वो जो चाइल्ड मैरिज की जो बच्ची थी, उस वक्त वो 8 महीने की थी, मैंने 1 हफ्ता लगा के उस बच्ची को ढूंढ निकाला। आज वो 32 साल की बाई देवी है। और बाई देवी को ये बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि उनकी शादी के लिए एक भंवरी को भंवरी बनना पड़ा और उनके साथ ऐसा हुआ। तो वो स्टोरी कहने मैं राजस्थान के दौसा ज़िले में मैं गई। सीमा हैदर को मैंने नहीं चुना। तो मैं जिस तरह की स्टोरीज़ करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे कौन सी कहानियाँ कहनी है। कई बार वो हिट होती हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जैसे भंवरी देवी को मिला। 3 दिन तक वो कहानी हमारे चार्ट्स के टॉप पर थी। और जब मैं कहती हूँ कि न्यूज़ रूम में पॉलिटिकल बीट यहाँ पर है, हायरार्की में, वो वीआईपी समझ लीजिए, क्योंकि उनको एक्सेस है पावर कॉरिडोर्स में। वो सबसे बड़े नेताओं के इंटरव्यू लाते हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं। हमारी स्टोरी जब जेंडर की वो परफॉर्म करती है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो रीडर्स हैं वो सब सीमा हैदर को नहीं पढ़ना चाह रहे। उनको अगर अच्छी स्टोरी दी जाए, उनको बताया जाए कि भंवरी के साथ क्या हुआ या वो आज किस दशा में है, तो वो पढ़ेंगे। सो बहुत बार हम पत्रकारों के तौर पे बहुत हम क्रिब करते हैं कि अच्छा जर्नलिज्म करने का तो स्कोप ही नहीं है, लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं। नो डाउट लोग सीमा हैदर को जानना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन हमें वो नैरेटिव मुट्ठी में लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि किस कहानी को आप कितनी तवज्जो देते हैं। और वो आता है न्यूज़ रूम के एडिटर्स से, कि मेरे एडिटर्स इस बात पे बिलीव करते हैं कि मैं भंवरी की स्टोरी को पूरे इंडिया में टॉप पर ला दूंगी। 3 दिन तक वो ट्विटर पे रहेगी और नई जनरेशन भी पढ़ेगी। आप सोशल मीडिया स्टार है ही हैं, आपके मोर देन आई थिंक 3 lakhs ट्विटर एंड मोर देन 4-5 lakhs इन फेसबुक, इंस्टाग्राम. So people follow it and it will be most of the stories have been trending. I have seen lakhs of likes, views and other things. So that's wonderful. It's a lot of work. मैंने बोला ना कि अपने अगर आप सिर्फ खबर लिख रहे हैं और आपका काम ख़त्म हो गया तो वैसा नहीं है। पहले, अब मुझे नहीं पता, बहुत सारे सीनियर पत्रकार यहाँ होंगे कि हम रात को खबर लिख कर चले गए, सुबह छप गई, हमारा काम हो गया, हाई कोर्ट वालों ने पढ़ लिया तो इम्पैक्ट आ गया। अब वैसा नहीं रहा है, हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं कि वो स्टोरी पहुँचे, मतलब आप लोगों के फ़ोन में वो लैंड करे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आए कि अरे ये स्टोरी पढ़ो। सो इट्स लॉट ऑफ वर्क। ये सिर्फ सोशल मीडिया के नंबर्स के परे बहुत कुछ होता है। So I remember when I was a child, I also had these aspirations of becoming a journalist. And then I remember this one time I told my dad that, you know, I really want to become a journalist. And there was some case where reporters were being beheaded. And he got really afraid and he was like, nahi, aap nahi ban sakte ho, you cannot do this thing. So then I decided, okay, fine, I will take another humanities, course. And to that, how do you these budding reporters, jinko, yes, is there someone though who does, yeah, exactly, I wanted to become, and then I took literature. Is there someone who is like that? I'm not sure if, okay. So there are a lot of us, definitely not as many here, but definitely out there in India as well. And we've had these, things of power and these issues coming up where, how do you keep, what would you say to these, young budding journalists who do want to pursue in this field, but, they're stopped by maybe family issues, maybe, not enough courage and all of these things. So, you have been a very intelligent person from the start. So you have been a very genius and intelligent student. So you could have taken another career as well, maybe little more high-paying job. What was the reason behind this, that you chose this challenging career where you have to face challenges every day, and then also you are maintaining and you are very happy about it, if I can understand? So जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए एक मैं अननोन चेहरा हूँ, लेकिन मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले से आती हूँ। ये साउथ हरियाणा के राजस्थान के बॉर्डर पर है और ग्रामीण इलाका है। हमारे यहाँ 2 ही प्रोफेशन है, लड़के 10वीं पास करते ही फ़ौज में जाते हैं और लड़कियाँ शादी करती हैं। तो मैं किसान परिवार से हूँ, छोटा एक लैंड ओनिंग परिवार है। 2 कनाल 1 एकड़ का चौथा हिस्सा जितना होता है वो मेरे पिताजी की ज़मीन थी। तो बचपन में हमारे गांव में पंचायत सिस्टम है, राजस्थान गुजरात सब जगह है। रूरल एरियाज़ की हमारे सेशन से पहले बहुत बात हुई कि क्या कर रहे हैं हम रूरल इंडिया के बारे में, तो मैं वहीं से आती हूँ।
जब मैं पल बढ़ रही थी तो मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत सारी जो मिलियंस ऑफ गर्ल्स होंगी उन्हीं की तरह हुआ। तो मुझे एक किस्सा बहुत अच्छे से याद है, जब भी कोई राजनेता, भले ही चीफ मिनिस्टर आए हों गांव में, वो आते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करता था, तो मेरी दादी मम्मियों की तरह मैं गेट से उनके व्हीकल्स को जाते हुए देखती थी। आप समझ रहे हो, औरतों का पार्टिसिपेशन इन पंचायत वो इतना लेसर और कम है कि महिलाएं छत से खड़ी होकर देख लेंगी, वो जाती नहीं है। बहुत अब हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत इंश्योर करना चाहती हैं कि औरतों का पार्टिसिपेशन पंचायत बॉडीज़ में हो, वो सिर्फ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स ना हो, सरपंच पति, सरपंच ससुर ये सब काम करते रहें। तो मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस वो रहे हैं। मैं गेट के पीछे वाली लड़की थी और मैंने कभी रोल मॉडल्स नहीं देखे थे कि कोई पत्रकार हमसे आके इंटरेक्ट करे स्कूल में, या फिर मुझे पता हो कि बियॉन्ड दिस विलेज देयर इज़ अ लाइफ, देयर इज़ अ वर्ल्ड, और उसमें कोई पत्रकार भी बनते हैं। टीवी पे देखते थे लेकिन कभी सोचा नहीं था। होता ना कि ड्रीम्स कब बनते हैं, जब आपको आपके पास इनफ हो, आपका पेट भरा हो। मैं कई बार जब कहते हैं गरीब बच्चों से पूछते हैं तो कहते हैं आपके सपने क्या हैं। बच्चों के उनके सपने होंगे ही नहीं ना, पहले पेट तो भरे, सर पे छत तो हो, तब सपने होते हैं। और एक बड़ा ही फेमस कोट है कि द चिल्ड्रन ऑफ द वेरी पुअर दे आर नॉट रेज्ड, दे आर ड्रैग्ड। तो बहुत सारे गांव के बच्चों की यही कहानियाँ होती हैं। आई टॉप्ड माई 12th, आई वॉज एन आर्ट्स स्टूडेंट और मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। मेरे दादाजी रिटायर्ड एक BSF जवान थे, उनका थोड़ी छाती फूल गई। अब आप भले ही हरियाणा को पेट्रियार्कल कह सकते हैं, दे आर पेट्रियार्कल, बट देर आर गुड एग्जाम्पल्स टू। मेरे दादाजी को लगा कि लड़की ने 12th टॉप कर दी, इसको कहाँ पढ़ाएं, एंड रैंडमली दे डिसाइडेड दैट दे विल सेंड मी टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड आज मैं जब लोगों को बोलती हूँ कि हरियाणा से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है ये दिल्ली, लेकिन हम वैसे बहुत दूर हैं, वो दूरी बहुत लंबी है, जो कल्चरल दूरी है और ये सब दूरियां बहुत थी। तो मैं पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुन रही थी। मैंने सिर्फ लड़कियों को JBT ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए देखा था, मेरा JBT में भी नंबर आ गया था। फिर मेरे दादाजी ने मुझे दिल्ली भेजा और वहाँ भेजा तो मैंने 2011 में पहली बार हिंदी बोली, उससे पहले हरियाणवी। आप सोचिए, इंग्लिश की किताब को मेरे टीचर हरियाणवी में पढ़ाते थे और वहाँ से मुझे कोर्स कौन सा कराया, इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर, जॉन डन। मैंने कहा ये क्या, कौन, वर्जीनिया वुल्फ, अ रूम ऑफ वन्स ओन। And I was looking at this world literature from a lens of a Haryanvi girl. वो दिल्ली के प्रोफेसर बैठे हुए हैं वहाँ Yeah. दिल्ली यूनिवर्सिटी के। No, Delhi University changed my life. I'm very thankful to my college, Daulat Ram College, my professors, because they changed my outlook. And then मेरा लेंस बदल गया। अब मैं वर्जीनिया वुल्फ के लेंस से मैं अपनी मम्मी, अपनी दादी को देख रही थी कि इनके पास कितना स्पेस था ये। और माई मदर, माई ग्रैंड मदर, दे वर मैरिड एज चाइल्ड, उनकी 15-15 साल में शादियाँ हुई थी। तो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई स्टडीड लिटरेचर, लेकिन 3 साल मेरे दिमाग में नहीं आया क्योंकि एकदम हिंदी का बच्चा अंग्रेज़ी में आ गया, पिछड़ गया स्कूल में। एक लिंग्विस्टिक जो चैलेंज होता है आपको, गुड़गांव ये हिंदी साहित्य में बहुत इस्तेमाल होती है कि गुरुग्राम के आखिरी गांव तक डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स। गुड़गांव की मेट्रो आप पकड़ते हो तो बिल्कुल अलग दुनिया, परफ्यूम वाली मेट्रो, थोड़ी सी लेडीज़ कंपार्टमेंट में थोड़ा अलग खुशबू, अलग अरोमा। जैसे घर की तरफ जाते हो मम्मी से आ रही हैं पसीने में, तो मेरा 2 दुनिया थी। बट in 2016 I was clueless. I was applying for MPhil PhD. मुझे लगा कि प्रोफेसर, क्योंकि मैं बहुत इन्फ्लुएंस थी प्रोफेसर से, बिकॉज they changed my life. तो मुझे लगा कि ये कितना ज़रूरी प्रोफेशन है जो किसी बच्चे का पूरा आउटलुक चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज एनीबडीज़ लाइफ। तो मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, बट देन आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सौरभ द्विवेदी, ललन टॉप. That was my first job, and I was very revolutionary, unlike many of Haryanvis who are, day and night defending their culture, because we are very emotional about our state identity too. कास्ट और जेंडर के अलावा स्टेट क्षेत्रवाद भी इतना होता है कि बिहार के लोग अपने बारे में, हरियाणा के लोग अपने बारे में, वी ऑल आर विक्टिम्स. सो मैंने अपने हरियाणा के कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, मतलब जैसे मैं हरियाणा के कल्चर को बहुत ग्लोरीफाई नहीं करती थी, मैं उसको एक लड़की होकर, जेंडर मेरा बहुत आता था. तो दैट्स हाउ आई लैंडेड माई फर्स्ट जॉब. आई वॉज नॉट डूइंग एनी जर्नलिज्म कोर्स, बट आई बिकेम अ जर्नलिस्ट बाई एक्सीडेंट, बाई चांस, but I found my calling.
दिस इज़ द मोस्ट एम्पावरिंग प्रोफेशन. आई बिलीव कि इससे ज़्यादा एम्पावरिंग प्रोफेशन इंडिया में नहीं हो सकता किसी लड़की के लिए, बिकॉज जिन नेताओं की रैली मैं गेट के पीछे से सुनती थी, उन्हीं नेताओं के इंटरव्यू करने के मौके मिले, उनके साथ में बैठकर सवाल पूछने के मौके मिले. और आज हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं. So that's my journey into journalism. And my grandfather, he passed away 2 साल पहले वो चले गए, but वो उनको समझ नहीं आया था कि मैं, आप लोग समझते हैं कि मैं पत्रकार हूँ, मेरी फैमिली नहीं समझती थी. तो के है कि मैं हरियाणवी में बोलूँ कि तू के करा समझ ना आवे. मैंने कहा दादाजी पत्रकार हूँ. तो बोले क्या करते हो? तो मैंने कहा ताऊ देवीलाल, क्योंकि दुष्यंत चौटाला उनके पोते हैं. तो मैंने कहा उसके पोते का इंटरव्यू करा दादाजी. अच्छा. तो उनको लगा कि देयर इज समथिंग, दिस गर्ल हैज़ बिकम समथिंग. सो फ्रॉम नोबडी टू समबडी आई हैड कम अ लॉन्ग वे. या It's a very inspiring story, yes. So, you must have a lot of challenges उस हिसाब से आपने जैसे बताया आपको. तो जब आप in journalism आप देखते हो कि English जो language है, you already आप now I am an English journalist. I report stories in English. Yeah. But even though with that elitism, आपको क्या लगता है, like how does this English what hinders, what ails the whole Indian English media, अगर आप उस नज़रिए से, उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो? सिर्फ इंग्लिश मीडिया नहीं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस के मीडिया हाउसेस भी हैं, या हिंदी भी है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको फिक्स करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रैवल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, और ज़िले में के हेडक्वार्टर्स में मुझे कोई लड़की पत्रकार नहीं मिलती है. इट्स ऑल अ बॉयज़ क्लब. तो जेंडर की प्रॉब्लम हमें बहुत जल्दी फिक्स करनी है, बिकॉज ऑल द स्टोरीज कम फ्रॉम अ मैन. और बहुत बार हमें वो स्टोरीज़, जब मैं दिल्ली से आती हूँ तो बीइंग एन आउटसाइडर आई गेट द स्टोरी far better than the local male journalist who's trying to cover that issue. So ये gender का problem है, वो हर जगह है, और ये English media में भी है, but not at the print. We are 80% women and most are as young as me. Some are even 22-year-old and they are covering ministries such as home ministry, environment ministry. तो सब जगह जाती हैं वो. तो ये प्रॉब्लम तो हमारे मीडिया हाउस ने फिक्स कर ली है, एंड आई एम थैंकफुल टू माई एडिटर शेखर गुप्ता. बट रिप्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत है, एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट इंडियन मीडिया देयर इज़ दिस एको चैम्बर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है, खतरे में है. ऑफ कोर्स वो तो हर सारे स्तंभ खतरे में हैं, हम सिर्फ अकेले नहीं हैं. लेकिन आई सी, ये मुझे बहुत उनकी चालाकी लगती है, या जो भी है, दे नेवर टॉक अबाउट द डाइवर्सिटी, द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन मीडिया. आप जो क्योंकि दिल्ली तो राजनीति का भी केंद्र है और मीडिया का केंद्र भी तो वही है ना, सेंटर तो वो है, और सारी फिक्स जो पावर है वहाँ लाई करती है. वहाँ के न्यूज़ रूम्स में डाइवर्सिटी का बहुत प्रॉब्लम है. और मैं कभी कभी सोचती हूँ, कोई ट्राइबल बच्चा हमारे साथ आके हमारे पेंट्री में बैठेगा तो उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गिर जाएगा. ही विल नॉट टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स विच सीरीज़ हैज़ कम. उसके पास तो अभी वो तो शुरू ही करेगा. ईटिंग हैबिट्स. सो पेंट्री से शुरुआत होके एडिटोरियल मीटिंग्स तक में विद इन न्यूज़ रूम्स हमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं. अभी आउटसाइड का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया है, वो चैलेंजेस अलग हैं. बट जो डाइवर्सिटी से हम ये, और जनता का नुकसान भी होता है कई बार. जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरे एडिटर्स सारे सीनियर्स बात करते हैं कि वी डोंट हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. अब नॉर्थ ईस्ट इतने सारे ट्रमोइल से गुजर रहा है, हर स्टेट में कुछ ना कुछ हो रहा है, बट लेंस क्या है? दिल्ली का. पत्रकार कौन जाएगा? दिल्ली का. तो नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? हमारे पास ट्राइबल्स क्यों नहीं हैं? हमारे पास SC क्यों नहीं है? आपको अगर पसमंदा मुस्लिम पे स्टोरी करानी है तो आप भेजेंगे किसको? कोई और जो ओवर रिप्रेजेंटेड है. समझ रहे हैं वो लोग, और ये सालों से है, इसका कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा. यू ब्रिंग सम पॉलिसी, क्योंकि कॉरपोरेट है ज़्यादातर मीडिया. सो बट दे हैव नॉट इवन स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन. शुरू करेंगे तभी तो कुछ एड्रेस सॉल्यूशंस खोजेंगे. सो दिस इज़ वन ऑफ द ये टॉपिक मेरे बड़ा, मतलब मैं सोचती थी कि जब मुझे मंच मिलेगा मैं इसकी एडवोकेसी ज़रूर करूँगी. आप यू जस्ट कैन नॉट बैश बॉलीवुड फॉर नेपोटिज्म. यू नीड टू फिक्स योर मीडिया हाउस टू, बिकॉज यही स्टोरीज जो हैं वो पॉपुलर नोशंस बनाती हैं अबाउट अ कम्युनिटी, अबाउट अ स्टेट, अबाउट जेंडर, अबाउट एवरी इशू. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हरियाणा हैज़ बिन रिटन ऑफ एज अ लैंड ऑफ ऑनर किलिंग्स, खाप पंचायत्स.
आप किसी भी इंग्लिश मीडिया हाउस में चले जाइए और वहाँ पर चाहे नया ट्रेनी हो, चाहे एक सीजन्ड रिपोर्टर हो, चाहे एडिटर हो, देयर इज़ दिस प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट हरियाणा। और ये बना कैसे? पॉप कल्चर ने बनाया। पॉप कल्चर किससे प्रभावित हो रहा है? मीडिया की रिपोर्ट से प्रभावित हो रहा है। तो आपका इंट्रो में फर्स्ट लाइन ही ये होगी, द लैंड ऑफ ऑनर किलिंग्स। सो हाउ वी are here to break the stereotypes, but you know sometimes unfortunately हम लोग ही जो हैं वो stereotypes को बनाते हैं। So I think this is a problem across media houses and we need to fix it, lack of diversity। और ये सिर्फ regions की नहीं है, caste की है, religion की है और कुछ states की भी है। बहुत सारे states जो हैं वो dominate करते हैं, बहुत सारे states का कोई representation नहीं है। So I think I would want to them to fix this, yeah। ऑल्सो आप जब ये केसेस आप जाते हो, आप रिपोर्टिंग करते हो एज अ सोलो रिपोर्टर, यू गो टू मैनी प्लेसेस, यू आर योर ओन रिपोर्टर, योर ओन वीडियोग्राफर एंड एवरीथिंग। हाउ डू यू, आप कैसे हाउ डू यू हैव द करेज टू गो अबाउट एंड एज अ वुमेन टू गो अबाउट एंड गेट दीज स्टोरीज, जस्ट हैव दिस opinion of going and taking those stories, getting those stories, because in media usually we see how media is sometimes it's not humanized, बहुत robotics सा समझाता है कि you have to chase stories, you have to keep going after stories and stories। तो आप वो कैसे how do you manage with it पूरा with your mental issues and mental well-being in that sense? तो हमारी जो एडिटर्स हैं वो 30 से 40 साल पहले जर्नलिज्म में आ गई होंगी और दे मस्ट हैव बीन वेरी फ्यू वुमेन इन द जर्नलिज्म। दे पेव्ड अ वे फॉर अस सो दैट आई कैन सिट हियर एंड टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। सो वी आर थैंकफुल टू द यस्टर ईयर फेमिनिस्ट वुमेन जिन्होंने जर्नलिज्म में आया और वो सारे चैलेंजेस फेस किए। बट वेन एवर वी हैव अ डिस्कशन विद इन आवर न्यूज़ रूम्स, द प्रॉब्लम्स दैट वुमेन फेस्ड 40 years ago आर स्टिल द सेम प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। मतलब हमारी एडिटर जब जाती होंगी स्मॉल टाउन्स, रूरल एरियाज़ में, वो सेम प्रॉब्लम्स फेस करती थी जो मैं आज भी करती हूँ। टेक्निकली विद इंटरनेट, विद टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से हमारा स्टेटस को तो चेंज होना चाहिए था, वो हुआ भी है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आया भी है, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट प्रॉब्लम सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर होती है और मुझे लगता है 40 साल बाद भी वैसी ही रहेंगी। सो इन प्रॉब्लम्स का कुछ नहीं कर सकते अदर देन फेसिंग दैम। यही है कि आप, और क्योंकि मैंने बोला मैं 21st सेंचुरी डिजिटल मीडिया की जर्नलिस्ट हूँ, सो वी ट्रैवल अलोन। फोटोग्राफर भी हम ही बनते हैं, फीचर इमेज भी हम ही क्लिक कर रहे हैं, वीडियो स्टोरी भी खुद ही शूट कर रहे हो, योर ड्राइवर इज़ डूइंग योर P2Cs, और आप इंटरव्यूज़ भी खुद कर रहे हो, स्टोरी भी खुद लिख रहे हो। सो इट्स आई थिंक जॉब कट्स की वजह से बहुत सारे रोल्स मीडिया से हट गए। ट्रेडिशनली जो पहले आप लोगों ने देखे होंगे, तो अब एक रिपोर्टर है वो ऑलराउंडर है, सारे काम करेगा, और अब इसमें हम कोई शिकायत भी नहीं कर सकते बिकॉज ये नया कॉर्पोरेट मॉडल है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू सेंड अ क्रू विद अस। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, और एज अ फीमेल रिपोर्टर मेरे साथ तो प्रॉब्लम सेफ्टी का रहता है, बिकॉज इफ़ आई एम गोइंग टू मध्य प्रदेश, मैं वहाँ ना ड्राइवर को जानती हूँ, नई सिटी है, और गूगल मैप हर जगह नहीं सही ले जाता है, ऐसी जगह फंसाया है कि आप सोच नहीं सकते। तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, और मैं इसमें फिर से जेंडर लाना चाहूँगी, बहुत सारे मेल्स जो नाराज़ भी हो जाते हैं, बट मेरा तो आधा टाइम इसी में जाता है कि मैं अपनी गूगल की लोकेशन अपने करीबी को दूं कि ज़रा देखना मैं कहाँ जा रही हूँ, जब तक वापस नहीं आ जाती उनकी टेंशन ख़त्म नहीं होती। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिमेन्स अ बिग चैलेंज। और जब लास्ट ईयर अभी मार्च में मुझे रामनाथ गोयन का अवार्ड मिला था, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, क्योंकि सब कुछ बंद था, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड। मी एंड माई कलीग वी हाईलाइटेड दैट देयर वर नॉट इनफ वॉशरूम्स, एंड यूट्यूब पे हमें बड़े हेट से कमेंट आए कि बताओ, एक लॉकडाउन कवर कर रही थी, वॉशरूम्स की इनको प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा ये हो रही है, इंडिया के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में औरतों को ध्यान में नहीं रखा गया है, औरतों के लिए अच्छे वॉशरूम नहीं बनाए गए हैं। और मैं अपने लिव्ड एक्सपीरियंस से कैसे कनेक्ट करती हूँ कि मेरी मदर बहुत बार इसलिए अपने किसी रिश्तेदारी में, या शी कुड नेवर स्टेप आउट ऑफ दैट विलेज बिकॉज उनको लगता था कि वॉशरूम कहाँ करेंगे रास्ते में। बहुत सारी ग्रामीण औरतें जब आज वो घरों में रहती हैं, वो उनके लिए वॉशरूम भी बहुत बड़ा मसला है कि वो कहाँ पर वॉशरूम जाएंगी। तो
वॉशरूम हमारी कोविड लॉकडाउन के कवरेज में बहुत बड़े इश्यूज हो गए थे, और इन चीज़ों जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो उस चीज़ की बात नहीं होती। और जब हम नई जनरेशन की लड़कियां हैं, हो सकता है पुरानी जनरेशन के पत्रकारों ने ना हाईलाइट किया हो, बट हम तो नई जनरेशन वाले हैं ना, आपके साथ इंटरनेट पे बराबर से वी हैव रिक्लेम्ड आवर स्पेसेस, सो वी विल स्पीक अबाउट इट, एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ the space for women in public infrastructure. बट इसके अलावा तो यूजुअल सबको फेस करनी पड़ती हैं, इंटिमिडेशन होता है, इफ़ यू आर फ्रॉम अ माइनॉरिटी और द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। आई एम सो कॉल्ड इसलिए बोल रही हूँ, कोई अपर और लोअर होता नहीं है, बट हमारे समाज में जैसे जिस तरह का कास्ट सिस्टम है, मुझे याद है जब मैं राजस्थान के एक असाइनमेंट पे गई थी, तो एक बाड़मेर का ही है ये, घर में अंदर बुलाने से पहले ही आस्क्ड अबाउट माई कास्ट एंड ऑल्सो अबाउट माई ड्राइवर्स, एंड शॉकिंगली मेरे ड्राइवर को बाहर बिठा के किसी अलग कप में चाय दी। आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट देन, बट आप उस वक्त कुछ कर भी नहीं सकते हो, यू डोंट वांट देयर हॉस्टिलिटी बिकॉज यू नीड देयर स्टोरी टू बी टोल्ड। सो हम ऐसे, तो मैं समझती हूँ कि जब जो माइनॉरिटी या इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, इंडियन सोसाइटी को ट्रूली रिपोर्ट करना चाहते हैं, और जब उनकी आइडेंटिटीज़ पे ऐसे अटैक होते हैं वाइल दे आर रिपोर्टिंग ऑन द ग्राउंड, इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग एंड डिस्करेजिंग। सो यू नो वी आर ए प्रिविलेज्ड बंच ऑफ क्लास, हम यहाँ पे हम सब समझते हैं, बट गांव का समाज तो अभी नहीं इवॉल्व हुआ है, तो उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अगेन एज आई सेड, कॉन्वर्सेशन तो शुरू कर ही सकते हैं, वी कैन बी मोर empathetic and more, you know, supportive to our colleagues who are from marginalized classes within our newsrooms। हम ये कर सकते हैं, और उनके लिए हेट कमेंट्स कम छोड़ सकते हैं, आई थिंक। This is something very important what Jyoti was saying. We need to be more empathetic towards everybody, and we have a theme, literature and human development. That is why we are trying, we are all human beings. Caste, creed, religion, state, district, countries, continents, these come later on. First of all, we all are human beings, so we need to be empathetic about it, not sympathetic. Empathy and sympathy, they are two different things. We need to be empathetic about it. So we are running short of time, but I wanted that some questions can be taken from audience if you want. Yeah, one or two we can take. Anybody can give mic? Sir, yes. Did you face the problem Me too? Serious question. Very serious question. I got lucky that I didn't face any Me Too, but मैं इसको ऐसे शुगर कोटेड लैंग्वेज में नहीं बोलूँगी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये करता है, और बहुत सारी लड़कियाँ डिस्करेज होके जर्नलिज्म छोड़ के भी जाते हैं, विच इज़ सैड। सो इसीलिए कहा ना कि हमारे यहाँ तो 80% विमेन है, लेकिन 50-50 का भी रेशो रखोगे तो एक हम बराबरी महसूस करेंगे, तो न्यूज़ रूम्स में वो चीज़ें मे बी ठीक हो सकेंगी। और ये तो आदमियों को ये समझना चाहिए कि जब कोई एक लड़की आपके बगल में आके डेस्क पे बैठ के काम कर रही है, उसके बैटल्स बहुत अलग है। Probably she fought for her education, then she fought for her right to do that job, and there are so many battles that go on in her personal life. So professional lives को difficult बना के हम कहीं ना कहीं औरतों को workforce से बाहर निकलने को मजबूर कर देते हैं। फिर से गवर्नमेंट्स जो हैं उनको फिक्स करने में अपना अलग टाइम लगा देती हैं कि औरतों को वापस वर्कफोर्स में कैसे लेकर आएँ। और दिस इज़ नॉट जस्ट मी टू की प्रॉब्लम सिर्फ न्यूज़ रूम्स में नहीं है। जो भंवरी की स्टोरी मैंने बताई, शी वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, साथीन प्रोग्राम चलता था राजस्थान में, और वो चाइल्ड मैरिज मुख्यमंत्री ने रुकवाने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री की एक अपील पे वो महिला रुकवा रही थी, और जब मौका आया सरकार को उसके साथ खड़े होने का, तो सारे जुडिशरी सरकारें उस तरफ हो गई। तो वो फर्स्ट मी टू के केसेस रहे होंगे भंवरी देवी जैसी औरतों के। तो हम राइट फ्रॉम द पंचायत लेवल टू डिस्ट्रिक्ट्स टू ब्लॉक्स टू स्टेट्स और सेंटर और फिर ये कॉरपोरेट, सब जगह ये इतना प्रिवलेंट है कि इसे हमें मतलब कलेक्टिवली इसे वो करना पड़ेगा। बट आई डिडंट फेस, बट मैनी ऑफ माई कलीग्स डिड फेस। यस, ज्योति, अभी आपने एक क्वेश्चन रेज किया और उस क्वेश्चन को हमारे दिमाग में भी है कि हाउ टू डाइवर्सिफाई द जर्नलिज्म इकोसिस्टम, रिलीजन वाइज, लोकेशन वाइज, कैटेगरी वाइज एंड डिफरेंट वाइज. So this is the problem, and I also think on your
I'm in agreement with you. So do you have any solution in your mind how to do that? It's a good question. We are also trying in the field to do it, but we are not able to get success. We are trying to do this in UP. Sir, जैसे कि As a insider, what one option in your mind to get it practiced to get the diversification? सर क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है कि ये सरकार तो है नहीं, माई बाप तो है नहीं कि 30% 40% लड़कियों को रिजर्वेशन देकर फिक्स कर लेगी। कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट तो मुनाफे का पूरा बिजनेस है। ऐसे में जो एडिटर्स हैं, हमारे जो एडिटर्स हैं, वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं व्हेन एवर दे हायर समबडी, व्हेन एवर दे अनाउंस सम इंटरव्यूज़, उसमें आप एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लो। एंड सम ऑफ द मीडिया हाउसेज, फॉर एग्जांपल स्क्रॉल और न्यूज़ लॉन्ड्री, जो ऑल्टरनेट मीडिया हाउसेज जिनको कहते हैं, हमारा ऑल्टरनेट मीडिया है, वो ज़रूर करता है एडवर्टाइज, वो ऐसे ही करता है। और उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, आदिवासी क्यों नहीं, वो तो भारत के लोग हैं, क्यों नहीं आदिवासी मीडिया में। तो लोगों को हमें अपने बिहेवियरल चेंज भी करने पड़ेंगे ना। वी डोंट वांट टू शेयर द पीस ऑफ दैट पाई। हमें लगता है कि दूसरा क्यों ले जाएगा, बट वी हैव टू मेक स्पेस फॉर देम। ये अपने आप से बनेगा नहीं। ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते कह रही हूँ कि जब तक कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है कॉर्पोरेट में, सो द एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट लाइक मी, वी हैव टू मेक कॉन्शियस डिसीजंस एंड ऑल्सो द विल टू वैकेट दैट स्पेस सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन फिल दैट vacancy and they can bring more diversified stories within our media. अच्छा, अभी ये आपकी बात को एक बहुत बड़े लीडर ने पत्रकारों में कहा कि आप में से कहा है, मैं इनडायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अदरवाइज इट विल गो टू पॉलिटिकल टोन। अभी मैं एक रिसेंट एग्जांपल बताऊँ, एक नैन्सी कटियार की लड़की है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, और वो यूट्यूब चलाती थी कि नैन्सी पूछेगी, और गांव देहात बिल्कुल तुम्हारी बैकग्राउंड की है, और उसका यूट्यूब बहुत बढ़िया चला। जब मेरे टच में आई तो मैंने उसे प्रमोट किया। व्हेन शी स्टार्टेड टू शो द रियल ग्राउंड, लोकल MP इनवाइट, एंड टुडे शी इज अंडर ट्रबल। उनका वो कंप्लेंट करवा करके उसका यूट्यूब को हैक करा दिया, बंद करा दिया। somehow she got regained the। तो ये चीज़ जो आप कह रही हो, ये बहुत जेन्युइन इशू है और हम सबको सोचना चाहिए। Thank you so much. We can take one more. Maybe. Yeah. Thank you so much. I've really enjoyed the conversation, although much of it was in the local language. I'm really sorry. It's okay. It's okay. For the English bits, it was clear. I'm Victor from Uganda, and I'm a law student in Rajkot Maradi University. I'm more interested equally in how you've been able to navigate through the tensions of the powers that be, like the government. Like you said, you're a neutral journalist, or you are pursuing the path of neutrality in reporting. How are you able to talk about the uncomfortable and deal with threats, pressure, and at the same time, the power stones, and be able to maintain your exactly. Thank you. Thank you. I'm sorry about speaking in Hindi, but these days I see many of the senior journalists, they discourage young journalism students that, it is not the best time to be a journalist. There are threats, and there is a threat to democracy, there is fake news. But whenever there are threats, intimidation, and whenever the information is controlled, that is the best time to be a journalist, right? That is the best time to be a journalist. And you will be judged for your role in the history, that whenever our future generations will come, and whenever they look at this period, and they will analyze our role as journalists, what we were doing in journalism. So I don't think that it is a bad time to be a journalist, but how to navigate, we are still figuring out. Like, we don't know how to navigate, we are just doing our job. So whenever there are threats, or especially, I think this social media trolling, this self-censorship is very dangerous, because of
you know, certain kind of trolling, I self-censor myself. Like this group got offended with this word, I will not write or I will not mention in my next report, which is not correct. Self-censorship, and I think most of the journalists, and especially women journalists, they are at the target of everybody, so they have gone in this self-censor mode, and which is not good for democracy. We will navigate, we will make sure that our mental health is in good state, but it is not going to benefit Indian society. Like, we need to be really fearless. So one quick question, 10-second question. Yeah, I would want to reply to her. Yeah, You can ask later on. please. Anybody might ask? Okay. It's okay. This is the last question. It is not a small question, but I would cut short and I'll ask it. I had seen one movie, and in that there was a girl, there was a female journalist, and she recorded something. She got some footage that one minister murdered another minister, and she gave that footage to a senior journalist. And then that senior journalist reported to that minister who murdered another minister. So what do you think, what steps should be taken to stop these kind of journalists? This was in a movie, so Maybe movies it are could be in a real, no? highly dramatic. They are not like It could be in a real, no? So there are some senior journalists who are mixed up and who are in favor with the ministers, and who doesn't show a proper and a correct image, no? But this has been going on for maybe centuries. जब से journalism होगा तब से होगा, and individuals ने अपने individuals रास्ते निकाले होंगे, but that doesn't happen very often. So इसका कोई मेरे पास बहुत सधा हुआ जवाब तो है नहीं कि क्या करेंगे. Individually, I think आप इसको address करेंगे. Thank you so much. It has been a very lovely, engaging discussion. And Jyoti ji, thank you so much for expressing your thoughts. And we expected that we'll come out with some kind of questions as well as solutions. Hopefully, we have been able to do it. Larissa, thank you so much. And thank you so much, everyone. Yeah, please. It was a great session. Thank you for being such a patient audience. I request Dr. Hira Lal and Mr. Uma Shankar Yadav to give the mementos. तो आज हम आए हैं अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, एंड मुझे ज्योति जी से पूछना है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट दिस फेस्टिवल मैम? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. मैं आज ही आई हूँ. आज मेरा सेशन था जो जर्नलिज़म है और जर्नलिज़म में जो यूथ हैं उनको लेकर उसके आसपास. बहुत अच्छा लगा. ऑडियंस में बहुत सारे लोग थे. बहुत फ्रूटफुल और इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन था, और बहुत सारे सेशंस ऐसे ही रहे हैं. मुझे पर्टिकुलरली जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स इन इंडियन लिटरेचर में, जिसमें 3-4 प्रोफेसर्स, फीमेल प्रोफेसर्स ने जो है स्टेज पे बहुत सारी मीनिंगफुल बातें कही और बहुत फियर्सली उन्होंने अपनी बातें रखी, मुझे वो बहुत पसंद आया. सो यस. ऑल राइट, थैंक यू मैम. थैंक यू.
हम AILF में आए हैं एंड हमें पूछना है कि कैसा लग रहा है लोगों को, कैसा माहौल उनको कैसा जम रहा है। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं इस फंक्शन में दोबारा आया हूँ। पहले भी एक बार मैं आया था और जब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ इतने नॉलेज आते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख के जाता हूँ और उससे हम लोगों की इफ़िशियंसी और इम्पैक्ट जो है बढ़ता है। तो ये मैं तो चाहता हूँ कि हर साल होता रहे जैसा कि हो रहा है, और मुझसे जो भी इसमें सहयोग होगा वो मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ नॉलेज इज पावर। वी आर गेटिंग एम्पावर्ड बाय गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। तो मैं इसको शुभकामनाएं देता हूँ, वो पार्टिकुलरली उमा शंकर जी को और जितने भी लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया है, जैसे ONGC वगैरह ये सामने दिखाई दे रहा है, तो इन सभी का भी मैं धन्यवाद अदा करूँगा जो कि इसमें इसको ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने अपना किसी भी तरीके से सहयोग दिया है। थैंक यू। थैंक यू।